out into the deserts, how many men has lost their lives from thirst? Many stories that I could keep you all night of true stories of the desert. वहां बाहर रेगिस्तान के अंदर कितने मनुष्य प्यास से अपने जीवन को खो चुके हैं। बहुत सी कहानियां जो मैं आपके लिए सारी रात रख सकता हूं, उन रेगिस्तान की सच्ची कहानियों की। How that when you become thirsty, how the devil gives you a mirage. You've seen them here, you don't have to go west to see them. Go down the road. And it looks like there's water down the road. किस तरह से कि जब आप प्यासे हो जाते हैं तो कैसे शैतान आपको एक मृगजल या धोखे को देता है। आपने उन्हें यहाँ देखा है। आपको उन्हें देखने के लिए पश्चिम जाने की आवश्यकता नहीं है। सड़क पर जाते हैं और ऐसा दिखाई देता है कि आगे सड़क पर पानी है। Every one of you has seen that. It's drove, been on the highway. That's a false mirage. Here some time ago, about 3 or 4 years ago, I read where some ducks flying across the country. आप में से हर एक ने इसे देखा है जो गाड़ी चलाकर और महामार्ग पर जाते रहे हैं। यह एक झूठा मृगजल है। यहाँ कुछ समय पहले, लगभग 3 या 4 वर्ष पहले, मैंने पढ़ा था जहाँ कुछ बतखें उस देश के पार से उड़कर आ रही थी। Seen a mirage and fell on the road thinking they were hitting the water, and they just disintegrated. Hit the hard road thinking they were landing in water. A mirage. एक मृगजल को देखा और सड़क पर गिर पड़ी, यह सोचकर कि वे पानी में जा रही हैं, और उनका बस कचुम्बर निकल गया। ठोस रास्ते पर जोर से गिर पड़ी, यह सोचकर कि वे पानी में उतर रहे हैं। एक मृगजल। How many times has the devil done that same thing to people? Give them a false mirage where there is nothing there, but it's just a make-believe. कितनी बार शैतान ने लोगों के साथ ऐसे ही काम को किया है। उन्हें एक झूठे मृगजल को देता है जहां वहां कुछ भी नहीं है, लेकिन यह केवल एक बनावटी विश्वास है। So many people today get a make-believe religion, trying to make up something or pretend there's something when it's not so. बहुत से लोगों के पास आज एक बनावटी विश्वास है। कुछ तो दिखावा करने की कोशिश करते हैं या ढोंग कि वहाँ कुछ तो है, जबकि यह ऐसा नहीं है। Like the little missionary woman said that she waited until she was positive. We better do that. You can't come back and try it again. जैसे कि छोटी मिशनरी महिला ने कहा कि उसने तब तक प्रतीक्षा की जब तक वो सकारात्मक नहीं हो गई थी। बेहतर होगा कि हम इसे करें। आप वापस आकर और इसे फिर से कोशिश नहीं कर सकते। You got one chance and you got the blueprint, so we better go right down to the mark. आपके पास एक मौका है और आपके पास नक्शा या रूपरेखा है, इसलिए अच्छा होगा कि हम सीधे निशाने पर चले जाएं। The cry of hunger. Listen, it's a great cry because it's a distressful cry. The person is dying. भूख की पुकार सुनना, यह एक बड़ी पुकार है क्योंकि यह एक कष्टदायक पुकार होती है। व्यक्ति मर रहा होता है। No, if we could get to that place, if this nation could get to a place to where it so hungered for God. और ओह, यदि हम उस स्थान पर पहुंच सकते हैं, यदि यह राष्ट्र एक ऐसे स्थान पर पहुंच सकता है जहां यह परमेश्वर के लिए बहुत ही भूखा हो। It's in a worse starvation than the nations like India that's starving physically. This nation is starving spiritually. यह भारत जैसे राष्ट्रों से भी बदतर भूखमरी में है, जो शारीरिक रूप से भूखे मर रहे हैं। यह राष्ट्र आत्मिक रूप से भूखा मर रहा है। But after you hunger so long, it gets to the place you don't know you're hungry. लेकिन आपके इतने लंबे समय तक भूखे रहने के बाद यह उस स्थान पर पहुंच जाता है, आप नहीं जानते
कि आप भूखे हैं। Just like freezing. After you get so far freezing, you get so cold, then after a while you become warm. And when you do, you're dying. That's what's the matter tonight. बिल्कुल ठंड में जमने की तरह इतनी दूर जाने के बाद ठंड से जमना, आप बहुत ठंडे हो जाते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद आप गर्म हो जाते हैं, और जब आप करते हैं तो आप मर रहे होते हैं। और आज रात यही मामला है। The churches has got so cold until they're freezing and think that they're warm by membership and are dying spiritually. Dying. Don't know it. Finally, he lays down to sleep, and that's all of it. He never wakes no more because his blood's frozen in his veins. कलीसियां इतनी ठंडी हो गई हैं, इतना तक कि वे ठंड से जम रही हैं और सोचते हैं कि वे गर्म हैं सदस्यता के द्वारा, और आत्मिक रूप से मर रहे हैं, यह नहीं जानते। अंत में वह सोने के लिए लेट जाते हैं, और बस इतना ही है, वो फिर कभी नहीं जागता, क्योंकि उसका लहू उसकी नसों में जम चुका है। Now, thirsting, Jesus said, "My blood is drink indeed." अब प्यासा होना, यीशु ने कहा, मेरा लहू वास्तव में पेय है। If you're hungering for life, Jesus has the only waters that can quench that thirst. यदि आप जीवन के लिए भूखे हैं, तो यीशु के पास ही केवल जल है जो उस प्यास को बुझा सकता है। Come unto me, all ye that are laboring heavy laden. Over in Revelations it said, let him that's thirsty come to the fountains of water of life and drink freely. If you're thirsty for life, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। प्रकाशित वाक्य में इसने कहा, वो जो प्यासा है वह जीवन के जल के सोते के पास आए और मुफ्त में पिए, यदि आप जीवन के लिए प्यासे हैं। we see that the astronomers are predicting sometime in this early part of the first part of the month, beginning on the 2nd or the 5th or somewhere along this month. हम देखते हैं कि खगोल विद्या वाले अनुमान लगा रहे हैं, किसी समय इस आरंभिक भाग में या महीने के पहले भाग में, दूसरे या 5वें से आरंभ करते हुए, या कहीं तो इस महीने के आसपास। The Indian astronomers predict the world to blow to pieces, and the American newspapers make fun of it. भारतीय खगोल विद्या वाले अनुमान करते हैं कि दुनिया टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, और अमेरिकी अखबार इसका मजाक उड़ाते हैं। I do not believe the world's going to blow to pieces, but I do say it's wrong to make fun of it, because something's fixing to happen one of these days. Something similar to that. मैं विश्वास नहीं करता कि दुनिया के टुकड़े टुकड़े होने जा रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि इसका मजाक उड़ाना गलत है, क्योंकि इन दिनों में से किसी एक दिन कुछ तो इसी प्रकार का घटित होने वाला है। When the 5 planets, Mars, Jupiter, and Venus, and so forth, comes into they never have did it. Oh, they claim maybe 25,000 years ago, but who is back there to know it? जब 5 ग्रह मार्स, जुपिटर और वीनस और इत्यादि उनके उस बात पर आते, उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया है। ओह, वे शायद 25,000 वर्ष पहले दावा करते हैं, लेकिन इसे जानने के लिए वहां पीछे कौन था? I predict that this has a spiritual application. I believe it's a coming in of the issue of God. मैं अनुमान लगाता हूं कि यह एक आत्मिक बात पर लागू होता है। मैं विश्वास करता हूं कि यह परमेश्वर के विषय में आ रहा है। That the great revelations of the Word will be opened during this time. Remember, they claim it was 3 stars came into their orbits when Jesus was born. कि वचन के वे महान प्रकाशन इस समय के दौरान खोले जाएंगे। याद रखें, वे दावा करते हैं कि ये 3 तारे
उनकी परिक्रमा के क्षेत्र या कक्षा में आए थे जब यीशु का जन्म हुआ था। And this is 5, and 5 is grace, the number of grace. 3 is the number of perfection. 5 is the number of grace. JESUSGRACEFAITH, so forth. और ये 5 है और 5 अनुग्रह है। अनुग्रह की संख्या 3 सिद्धता की संख्या है, 5 अनुग्रह की संख्या है। JESUSGRACEFAITH इत्यादि। Number of grace. Amen. God ever sends His power to the church, it'll be His grace. It won't be the obedience of the people. Oh, amen. अनुग्रह की संख्या परमेश्वर अपनी सामर्थ कलीसिया के लिए भेजता है, यह उसका अनुग्रह होगा, यह लोगों की आज्ञाकारिता नहीं होगी। Isaiah said in the 40th chapter how to cry to Jerusalem that her warfare was over, yet she was guilty of idolatry, but it was God's grace that was sending it. Amen. और यशायाह ने 40वें अध्याय में कहा, कैसे यरूशलेम के लिए पुकारो कि उसका युद्ध समाप्त हो गया था, फिर भी वह मूर्ति पूजा के दोषी थे, लेकिन यह परमेश्वर का अनुग्रह था जो इसे भेज रहा था। God sends anything to us, it'll be His grace and not our merits. So it may mean something. I predict that there will be a change. परमेश्वर हमारे लिए कुछ भी भेजता है, यह उसका अनुग्रह होगा और ना ही हमारी योग्यता, तो इसका कुछ मतलब हो सकता है। मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि एक बदलाव होगा। I don't know what it'll be, but I believe it's fixing to happen. We're on the right on the eve of it now. मैं नहीं जानता कि यह क्या होगा, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि यह घटित होना तय है। हम ठीक अब इसकी पूर्व संध्या पर हैं। And if any man hungers, let him come to Christ. If any man is thirsty, let him come to Christ. और यदि कोई मनुष्य भूखा है तो वो मसीह के पास आए, यदि कोई मनुष्य प्यासा है तो वो मसीह के पास आए। He quenches the thirst. Praise. He is the satisfier of all of our thirst and hunger. वह प्यास को बुझाता है, वो हमारी सारी प्यास और भूख को संतुष्ट करने वाला है।